سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر انتم تم ہؤلاء سب تقتلون قتل کرتے ہو انفسا جانوں کو کم اپنی اور تخرجون نکالتے ہو تم فریقاً ایک گروہ کو من سے کم اپنے من سے دیاری گھروں ہم ان کے تظاہرون مدد دیتے ہو تم علی اوپر ہم ان کے بھی ساتھ الاسمی گناہ اور العدوانی زیادتی کے اور ان اگر یأتو آئیں کم تمہارے پاس اسارا قیدی تفادو فدیہ دیتے ہو تم ہم ان کا اور ہوا وہ محرم حرام کیا ہوا علی اوپر کم تمہارے اخراجو نکالنا ہم ان کا کیا افا پس تؤمنون ایمان لاتے ہو بھی کا بعضی بعض الکتابی کتاب کا اور تکفرون انکار کرتے ہو تم بھی کا بعض پس ما کیا جزاؤ بدلہ من جو یفعلو کرے ذالکا یہ من سے کم تم اللہ مگر خزی رسوائی فی میں الحیاتی زندگی الدنیا دنیا کی اور یوم دن القیامتی قیامت یردونا وہ لوٹائے جائیں گے الہ طرف اشدی سخت العذابی عذاب اور ما نہیں اللہ رب العزت بغافل بے خبر عن اس سے ما جو تعملون تم کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال رہے ہو اور مستزاد یعنی زائد یہ کہ اس کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ رب العزت تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ثم انتم ہؤلاء پھر یہ جو تم ہو۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1 ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، نمبر 3
मुनाफिकीन अगर वो अपनी कौम के किसी मर्द या औरत को इस हाल में पाएँ कि इसे ग़ुलाम या लोंडी बना लिया गया है तो इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दें। नस्ल दर नस्ल ये अहद चलता रहा, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में आबाद यहूदियों के दो क़बाइल थे, बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर। ये मुंतकिल हो गए मदीना मुनव्वरा में। उस वक्त में मुशरिकों के दो कबीले जो औस और खज़रज रहते थे, बनी क़ुरैज़ा औस कबीले के हलीफ थे और बनी नज़ीर खज़रज कबीले के हलीफ थे, और हर एक कबीले ने अपने हलीफ के साथ कसम उठा रखी थी कि अगर हम में से किसी पर कोई हमला आवर हो तो दूसरा उसकी मदद करेगा। जब औस और खज़रज के दरमियान जंग होती तो बनी क़ुरैज़ा औस की और बनी नज़ीर खज़रज की मदद के लिए आते थे और अपने हलीफ के साथ होकर आपस में एक दूसरे पर तलवार चलाते, और बनी क़ुरैज़ा बनी नज़ीर को और वो बनी क़ुरैज़ा को कत्ल करते थे, इनके घर वीरान कर देते और इन्हें इनकी रिहाइश गाहों से निकाल देते थे। लेकिन जब इनकी कौम के लोगों को इनके हलीफ कैद कर लेते तो वो इनको माल देकर छुड़ा लेते थे। मसलन अगर बनी नज़ीर का कोई शख्स औस कबीले के हाथ में गिरफ़्तार होता तो बनी क़ुरैज़ा औस कबीले को माली मुआवज़ा देकर इनको छुड़ा लेते। हालांकि अगर वही शख्स लड़ाई के वक्त इनके हाथ आ जाता तो उसे कत्ल करने में हरगिज़ दरेग ना करते थे। लोगों ने इनसे कहा कि तुम भी अजीब लोग हो कि एक दूसरे को कत्ल भी करते हो और फ़िदिया देकर छुड़ा भी लेते हो। यहूदियों ने कहा हमें तौरात में ये हुक्म दिया गया है कि हम अपने कैदियों को फ़िदिया देकर छुड़ा लें। इस पर इनसे कहा गया कि फिर तुम एक दूसरे को कत्ल क्यों करते हो, हालांकि तौरात में तुम्हें इस चीज़ से भी मना किया गया है। यहूदियों ने कहा जंग के दौरान एक दूसरे को कत्ल करने से अगरचे हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किया हुआ अहद टूट जाता है, लेकिन हमें इस बात से शर्म आती है कि हमारे हलीफ ज़लील हों, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन ना किया तो इसमें हमारे हलीफ़ों की ज़िल्लत है, और चूँकि फ़िदिया देकर छुड़ा लेने में इनकी ज़िल्लत नहीं है इसलिए हम इस अहद को पूरा कर देते हैं। यहूदियों की इस हरकत पर इन्हें इस आयत में मलामत की जा रही है कि जब तुमने अपनों को खूनरेज़ी ना करने, इनको बस्तियों से ना निकालने और इनके जो कैदी हैं उनको छुड़ाने का अहद किया था, तो ये क्या दो रंगी तुमने अपना रखी है कि तुम एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन करने में तो हरगिज़ दरेग नहीं करते, और जब कोई गिरफ़्तार हो जाए तो उसे फ़िदिया देकर छुड़ा लेते हो। और जिन बातों का तुमसे अहद किया गया था इनमें से कुछ बातों को मानना और कुछ को ना मानना क्या मानी रखता है। जब तुम एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन करने से बाज ना रहे तो तुमने अहद शिकनी की और हराम के मुर्तकिब हुए। आगे फरमाया अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी, क्या किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो। बनी इसराइल का अमली ईमान नाक़िस था कि कुछ हिस्से पर अमल करते थे कुछ पर नहीं, और इस पर फरमाया गया कि क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ से इनकार करते हो। इस आयत से मालूम हुआ कि शरीयत के तमाम अहकाम पर ईमान रखना ज़रूरी है और तमाम ज़रूरी अहकाम पर अमल करना भी ज़रूरी है। कोई शख्स किसी वक्त भी शरीयत की पाबंदी से आज़ाद नहीं हो सकता, और ख़ुद को तरीक़त का नाम लेकर या किसी भी तरीक़े से शरीयत से आज़ाद कहने वाले जो हैं वो कुफ़र के मुर्तकिब होते हैं। और इस पर उलमा ने जो है इस पर बड़ी बहस फरमाई है, और ये फरमाया कि अज़मत तौहीद को मानना, अज़मत रिसालत का जो है वो इनकार ना करना, वो इसी ज़ुमरे में आता है कि इस तमाम किताब को जो है अमल किया जाए, कुछ को माने कुछ को ना मानने, गोया ये जो है तौहीद और रिसालत दोनों का इनकार के बराबर है। आगे फरमाया खिज़्युन फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है। बनी इसराइल की दुनिया में तो ये रुसवाई हुई कि बनी क़ुरैज़ा 3 हिजरी में मारे गए और बनी नज़ीर इससे पहले ही जिलावतन कर दिए गए। इससे मालूम हुआ कि किसी की तरफदारी में दीन की मुखालिफत करना उखरवी अज़ाब के अलावा दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस होता है। दुनिया के बड़े बड़े मामलात को इस आयत के तहत देखा जा सकता है। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि कभी
بڑی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات آ جاتی ہیں۔ گناہ کی جو ہے انسان کثرت سے گناہ کرے تو انسان پر جو ہے دنیاوی آفات آ سکتی ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں۔ اس طرح کی آیات ان میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی عز و جل تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیات میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔